Good morning, dear students. So today we are going to discuss about one more concept of the biodiversity, that is loss of biodiversity. So dear students, we know that nature has provided us enormous biodiversity and which is really beautiful, but human being so selfish has endangered this entire nature. And if we are losing the nature, obviously, ultimately, according to the Rivet-Popper hypothesis of Paul Ehrlich, human being, or you can say human race, is also going to be endangered. But that we are not accounting at right now. And we are gradually eliminating the beautiful creatures of the nature. So, according to IUCN Red Data List of the 2004, 784 species, again listen carefully, 784 species were extinct in the last 500 years. Okay, तो ऐसे species जो recorded हैं उसमें से 784 species we have lost in last 500 years. और वो 784 species में कौन कौन है? So 338 vertebrates हैं, 359 invertebrates and 87 species of the plants that we have lost. For example, dodo, bird of the Mauritius, then quagga of the Africa, thylacine of Australia, Steller's sea cow of Russia, of the Siberian region, and 3 subspecies of the tiger. और ये कौन कौन से subspecies हैं टाइगर के? तो बाली, जावा एंड कास्पियन, ये 3 सबस्पीसीज है टाइगर के जिसको हमने लास्ट 500 इयर्स में लॉस कर दिया है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर्स पूछे जाते हैं आपके नीट एग्जाम में, और उसके साथ साथ ये प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पीसीज हैं उनके नाम भी पूछे जाते हैं. डोडो इज अ बर्ड ऑफ द मॉरिशस. क्वागा एक एनिमल दैट इज पर्टिकुलरली अ हॉर्स लाइक एनिमल. ओके, फिर एक मार्सुपियल है दैट इज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, थाइलेसिन, फिर स्टेलर सी काउ और टाइगर के 3 स्पीसीज, 3 सब स्पीसीज. डोडो 27 species disappeared in the last 20 years. See, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसकी वजह से डोडो, ये innocent birds ने 27 species have been disappeared, okay, in last 20 years. More than 1 species per year we have lost. Quagga, more than 15,500 species face the threat of the extinction right now. Okay, 15,500 species are on the verge of the extinction. They are facing the threat of the extinction. मतलब ऐसे species हैं अभी, not of the quagga, वो तो extinct हो चुका है, लेकिन 15,500 ऐसे new species है, more than that. Okay, they are on the verge of the extinction. %12 of the birds, 23% of the mammals, 32% of the amphibians, and 31 gymnosperm species face threat of the extinction right now at present. Okay, तो 12% species birds के ऐसे हैं जो अभी on the verge of extinction है. 23% of the mammals, 32% of the amphibians, 31% of the gymnosperm species. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब इंफॉर्मेटिव है और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको ये नंबर, फिगर्स, फैक्ट्स ये याद रखने पड़ेंगे, जस्ट लाइक अ जनरल नॉलेज. ओके, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं.
3 टाइगर के स्पीसीज के फोटोग्राफ आपको दिखाए गए यहाँ पे। ओके, बाली टाइगर, जावा टाइगर एंड कास्पियन। The current species extinction rate is 100 to 1000 times faster than in the pre-human times. Okay, तो human का जब से evolution हुआ है उसके पहले के टाइम में भी extinctions हुए हैं. Those are the mass extinction events. Okay, वो natural थे, तो उसमें भी एक्सटिंक्शन तो हुआ है, लेकिन अभी का जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है या एक जो एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज का प्रोसेस चल रहा है, दैट इज मच मोर फास्टर देन द प्री ह्यूमन एजेस. ओके, कितना फास्ट है उसका रेट? 100 to 1000 टाइम्स. मतलब अगर नेचुरली कोई स्पीसीज 1000 ईयर्स में वैनिश हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, तो बिकॉज ऑफ जस्ट प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, वही स्पीसीज 1 ईयर में एक्सटिंक्ट हो सकती है, according to this estimate. If this trend continues, nearly half of all the species on earth might be extinct within next 100 years. अब आप सोचिए, we are talking in 2021. और अगर हम इसको roughly 21st century का beginning मान के चले, तो at the end of the 21st century, the biodiversity will be half, okay, of the present one. तो जस्ट आप सोचिए, अभी आपके आसपास में जितने प्लांटेशन, एनिमल्स और ये सब कुछ जो दिख रहा है, फ्लोरा एंड फौना, व्हाटएवर यू आर ऑब्जर्विंग व्हिच इज प्लीजेंट, ओके, व्हाट यू थिंक आफ्टर eliminating half of this quantity, will earth look this much better? Will it be livable for human also? No, not at all. So we are losing the biodiversity at very fast rate, and obviously loss of biodiversity is having its impact on earth, and the impacts are obviously going to have very deleterious effects on human livelihood on this planet. तो एक तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है? तो डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन. कॉन्स्टेंटली प्लांट प्रोडक्शन कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? तो बिकॉज सनलाइट तो उतनी मिल रही है, लेकिन हमने न्यूट्रिएंट क्वालिटी खराब कर दी है सॉइल वाटर की, नंबर 1. नंबर 2, वी हैव एलिमिनेटेड नंबर ऑफ द इंसेक्ट्स व्हिच वर एक्चुअली द पोलिनेटर्स ऑफ दोस प्लांट्स. वी हैव एलिमिनेटेड नंबर ऑफ द स्पीसीज व्हिच वर पोलिनेटर्स ऑफ दोस प्लांट्स. ओके, तो इसकी वजह से पोलिनेशन कम हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन कम हो रही है, तो प्लांट का प्रोडक्शन भी वहां पे डिक्लाइन हो रहा है. नंबर 2, एनवायरमेंटल perturbations such as drought. तो एनवायरमेंट जो अभी तक प्रेडिक्टेबल था कि सीजनल वेरिएशंस जहां कहीं भी है, तो वी कैन प्रेडिक्ट कि समर कब होगा, कितने महीने चलने वाला है, कब कितना टेम्परेचर रहने वाला है, एवरीथिंग वाज प्रेडिक्टेबल. लेकिन अभी ये प्रेडिक्शन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि देयर आर सडन चेंजेस इन द एनवायरमेंट. ओके, जैसे कि ड्रॉट एंड ऑल दिस आर हैपनिंग repeatedly. Increased variability in ecosystem processes such as plant productivity, water use, and pest and disease cycles. तो stability ecosystem की अब नहीं रही है. Okay, the ecosystem has become random. बहुत सारे ecosystem ऐसे हैं जो ऐसे randomized way में काम करना शुरू कर देते हैं, because there is no stability of the environmental conditions. Okay, और उसकी वजह से उसके इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है? प्लांट प्रोडक्टिविटी के ऊपर हो रहा है, वाटर यूजेस के ऊपर हो रहा है, पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हो रहा है, डिजीज साइकिल के ऊपर हो रहा है, राइट? तो ऑल दीज आर ऑब्वियसली गोइंग टू हार्म द एंटायर बायोस्फीयर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये सब बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है और उसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं ऑन दिस प्लेनेट, ये तो हमने देखा. बट व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड. ओके, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कॉजेस. सो डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन in scientific way with respect to the ecological studies, they have been grouped into 4 different categories. और इसीलिए इनको एक कॉमन टाइटल दिया गया है, that is called the evil quadrant.
एविल कॉटरेट, कॉटरेट का मतलब है 4, तो ऐसे 4 एविल which have actually diminished, which have dangerously affected the enormous biodiversity of this planet. तो वो कौन कौन से एविल्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो एविल कॉटरेट में एक तो है आपका लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट। नंबर 2, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द natural resources. Number 3, invasion of the alien species. Number 4, co-extinction. तो ये 4 ऐसे dangerous causative agents आप बोलिए, evils बोलिए, which has really damaged our ecosystems, and on larger scale it has damaged our entire biomes and the entire planet Earth. तो इन सभी के बारे में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर कि इनमें से एक या दो के बारे में बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। एविल कॉटरेट के कोई 2 फैक्टर्स वो आपको एग्जामिनर डायरेक्ट भी दे सकते हैं, एक्सप्लेन अबाउट ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, नीट में भी ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। सो फर्स्ट एविल दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो लॉस ऑफ हैबिटेट क्यों होता है, जस्ट आस्क योरसेल्फ। तो डियर स्टूडेंट, राइट नाउ we are running behind development, but on the cost of ecosystems, on the cost of loss of biodiversity. We are saying urbanization and industrialization is development, but it is actually not development, it is degradation of the ecosystems. And that's why it is being one of the most important cause of the loss of biodiversity. For example, tropical rainforest जो है, they have been lost from 14% to 6%. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो कैनोपी था, या आप बोल सकते हैं डेंसिटी जो था, इट वाज 14%, ओके, ऑन टेरेस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द अर्थ, लेकिन अब वो 14% से कम होके 6% ही रह गए हैं। यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, ये पूरा आप देख सकते हैं आसपास में डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन इन बिटवीन दिस व्हाट वी हैव डन, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस किए गए आप देख सकते हैं, ओके, और उसके लिए हमने क्या किया है, डिफॉरेस्टेशन, इतने एरिया को हमने डिफॉरेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं उसका एक जूम इन फोटोग्राफ, ओके, इसी फोटोग्राफ को नजदीक से दिखाया गया, यू कैन सी ओवर हियर, right? Thousands of the hectares of rainforest are being lost within hours. Okay, within hours, thousands of the hectares, not 1 or 2 hectare only. Thousands of the hectares of the rainforest are being lost within few hours. Okay. आप देखो यहाँ पे अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है ये पूरा, ओके, और ये जो रेन फॉरेस्ट है उसमें आप देख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन किया गया है, कुछ यहाँ पे फार्मिंग करने के लिए इसको फार्म में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा आप देख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। फ्रेगमेंटेशन कैसे है, तो ये पूरा कंटिन्यूअस एक फॉरेस्ट था, लेकिन अपने कन्वीनियंसी के लिए हमने क्या किया है, ओके, टू डेवलप द हाईवेज टू कनेक्ट द सिटीज, हमने इस जंगल के 2 टुकड़े कर दिए। एंड व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे एनिमल्स के लिए हमने ब्रिज बना दिया है, ओके, सो दैट दे कैन पास ऑन थ्रू दिस ब्रिज एंड दे कैन एंटर इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द forest. So by doing this type of the things, we would like to justify ourselves, okay, कि हमने biodiversity के loss को बचाने के लिए हमने ये किया है।
बट व्हाट वी हैव डन, तो ये पूरा जो एक कंटिन्यूअस जंगल था जहाँ पे फ्री मूवमेंट थी सभी एनिमल्स की, उसको हमने पीसीस में कन्वर्ट कर दिया। और जब ऐसा होगा तब रिसोर्स पार्टीशनिंग का क्वेश्चन होगा, तब कंपटीशन का क्वेश्चन होगा, तब प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप का भी क्वेश्चन होने वाला है। सो द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज बीइंग कट फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स और फॉर कन्वर्जन ऑफ द ग्रासलैंड्स फॉर कैटल्स। ओके, तो अब कैटल्स को फीड करने के लिए हम अमेज़न के रेन फॉरेस्ट को ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोयाबीन्स कल्टीवेट करने के लिए हम अमेज़न के रेन फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं। Fragmentation badly affects animals requiring large territories and migratory animals. Obvious है, जो माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, पर्टिकुलरली बर्ड्स हो सकते हैं उसमें बहुत सारे, तो राइट। और ऐसा फ्रेगमेंटेशन करने की वजह से प्लांट को शायद हो सकता है कि उतना इम्पैक्ट ना हो, लेकिन एनिमल्स को तो 110% वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, बिकॉज उनकी जो मूवेबिलिटी थी, मूवमेंट थी, उसको आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। एंड दूसरा ये भी हो सकता है, आपने बहुत बार अफ्रीकन रीजन के कुछ हाईवेज के फोटोग्राफ देखे होंगे जहाँ पे लायन, टाइगर एंड एलिफेंट्स, ओके, ऑल दे आर वंडरिंग ऑन द रोड्स, एज वेल एज हमारे गुजरात की हम बात करें तो लायंस आर वंडरिंग ऑन द रोड्स। ऐसा कैसे हो रहा है? बिकॉज वी आर पासिंग द रोड्स थ्रू द जंगल्स। और बहुत बार ऐसा भी होता है, देयर माइट बी एन एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की वजह से तो हमने बहुत सारा डैमेज किया हुआ है। उसके अलावा एक दूसरा भी रीजन है, दैट इज कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ऐसे कुछ ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से लॉस होने वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? तो एक तो है स्टेलर्स सी काउ, और दूसरा है पैसेंजर पिजन। दे आर एक्सटिंक्ट ड्यू टू देयर ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओके, एक्सप्लॉइटेशन जनरली हम क्या बोलते हैं? नेचर को यूज करना है, रीयूज करना है, रीएस्टैब्लिश करना है, लेकिन हम नेचर को यूज नहीं करना जानते हैं, नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, और उस एक्सप्लॉइटेशन में भी अभी हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ही ऐसे पैसेंजर पिजन जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टेलर सी काउ जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो बेनिफिशियल इफेक्ट थे, उसकी वजह से हमने उनको ओवर एक्सप्लॉइट किया, एंड नाउ दे आर एक्सटिंक्ट। फिर तीसरा जो है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग फंडामेंटल है। एलियन स्पीसीज इन्वेशन, एलियन मतलब फॉरेन, स्पीसीज इन्वेशन, इन्वेशन मतलब टू गेट एंट्री। तो ऐसा होता है, एलियन स्पीसीज कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडिजिनस स्पीसीज। ओके, ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व हुआ है। अगर किसी एलियन स्पीसीज को किसी एक नेचुरल इकोसिस्टम में अगर हम इन्वेट करवा रहे हैं, अगर हम उसकी एंट्री करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां की जो इंडिजिनस स्पीसीज थी, मतलब वहां के जो नेटिव स्पीसीज है, दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू हैव देयर नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, और उसकी वजह से उसकी जो इंडिजिनस स्पीसीज है, जो वहां से मे बी पॉसिबल 100 और थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स से वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं उस ज्योग्राफिकल निश में, इट हैज टू सफर अ लॉट। क्योंकि जो नया स्पीसीज एंटर हुआ है, इट इज हैविंग एडवांटेज ओवर द इंडिजिनस स्पीसीज। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छे कार्टून में भी आपको यही एक्सप्लेन किया गया है। ओके, द एंट इज कमिंग टू एंटर इनटू पर्टिकुलर इकोसिस्टम, तो उसके लिए वहां पे ऑप्शन दिए गए, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्पल्स फॉर द एलियन स्पीसीज इन्वेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नाइल पर्च का। ओके, so the Nile perch introduced into the Lake Victoria of the East Africa caused extinction of more than, आप देखिए, more than 200 species of the cichlid fish in the lake। अब देखो कितने ब्यूटीफुल फिशेस हैं ये cichlid fish। ओके, see the bright colors of this fishes।
और क्या क्या इन छोटी फिशेस के सामने आपने ये एक बहुत बड़ी नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस कर दिया है इनटू द लेक विक्टोरिया, और उसी की वजह से इस लार्ज फिश की वजह से क्या हो रहा है, तो मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ जस्ट वन काइंड ऑफ द सिक्लेट फिश इज एक्सटिंक्ट। ऐसा ईस्ट अफ्रीका में हुआ है। फिर ऐसा दूसरा एग्जाम्पल है, और ये नाइल पर्च वाला एग्जाम्पल पूछा भी जाता है नीट एग्जाम में। दूसरा एग्जाम्पल है इन्वेसिव वीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास दैट इज पार्थेनियम, लेंटाना एंड वाटर हाइसिंथ दैट इज आइकोर्निया caused damage to our native species। ओके, तो ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए हैं ऐसे इन्वेसिव वीड स्पीसीज। अब वीड जनरली हमें पता है, जो फार्मिंग करते हैं उनको भी पता है, वीड्स आर नोटोरियस। ओके, हमारे क्रॉप प्लांट की प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। दे आर कंपीटिंग फॉर द रिसोर्सेज, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सॉइल। तो वीड्स तो ठीक नहीं है वैसे भी, लेकिन इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया by some foreign travelers and some rulers, okay, foreign rulers like Britishers and all, right? So ऐसे कौन कौन से स्पीसीज इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए, तो एक है पार्थेनियम दैट इज कैरेट ग्रास, ओके, दिस वन। दूसरा है लेंटाना, ओके, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर देयर, फ्लावर ही ब्यूटीफुल है, बाकी ये इन्वेसिव प्लांट है। और इसके भी फ्लावर ब्यूटीफुल है, वाटर हाइसिंथ, ओके, यू कैन सी द पर्पल कलर फ्लावर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारे फ्लावरिंग प्लांट है और इनके फ्लावर्स जो हैं, जनरली ये स्पीसीज जो एंटर करवाए गए इंडिया में, इट इज बाय ब्रिटिशर्स। ओके, तो ब्रिटिश रूलर्स जो थे उन लोगों ने क्या किया, तो उनके जो ब्रिटिश यहाँ पे लॉर्ड्स जो रहते थे, ओके, जस्ट टू प्लीज देयर फैमिली मेंबर्स, पर्टिकुलरली देयर वाइव्स एंड ऑल, राइट, तो उनके लिए उन्होंने ये यूरोपियन कंट्रीज से ये प्लांट यहाँ पे मंगवाए और इसको यहाँ पे ग्रो किया गया। और अभी प्रॉब्लम ये है कि ये इतने इन्वेसिव हो चुके हैं कि इसको हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, एंड नाउ जस्ट दे हैव बिकम आवर इंडिजिनस स्पीसीज। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ देयर इन्वेसिव नेचर बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो हमें लॉस करने पड़े, जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी के थे। रिमेंबर, इंडियन बायोडाइवर्सिटी कई गुना बेटर है कंपेयर टू द यूरोपियन डाइवर्सिटी, तो उसको लॉस होना पड़ा जस्ट टू मेंटेन दिस 3 स्पीसीज। एक तो एग्जांपल आप इस सिलेबस में आपने 2-3 बार पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, वाटर हाइसिंथ, 12th में अभी एक बार इसको हम पढ़ेंगे। वाटर हाइसिंथ दैट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, ओके, आइकोनिया प्रोसोपिस जिसको हम बोलते हैं। तो ये प्लांट जो है वो इतना इन्वेसिव है कि जितनी देर में आप इसके जितने टन्स फ्रेश वेट आप अगर पॉन्ड से निकाल रहे हो, उतने ही टाइम में उससे कई गुना ज्यादा वो वापस डेवलप हो जाता है, बिकॉज इट इज हैविंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फैसिलिटीज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसकी। तो हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, पर्टिकुलरली रिवर्स, पॉन्ड्स, ओके, उन सभी में ये एजिंग करवा रहा है, मतलब हमारे पॉन्ड्स इसकी वजह से सूख रहे हैं, हमारे रिवर्स इसकी वजह से बाकी जो इंडिजिनस स्पीसीज है प्लांट्स की और एनिमल्स की, फिशेस वगैरह की, उसको अच्छे से ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा पॉन्ड और एरिया जो है ये सरफेस कवर कर देता है पॉन्ड का। तो कैसे नीचे रहने वाले ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अगर आप इसको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लगेगा भी नहीं कि ये पॉन्ड है, ये कोई फार्म लगेगा आपको, उतना अच्छे से अपने आप को ये डेवलप कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, this is really so dangerous to get enter a new invasive species into the indigenous flora and fauna. ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है, इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश। ओके, आप देखिए ये अफ्रीकन कैटफिश है, दैट इज क्लैरियास गैरिपाइनस फॉर एक्वाकल्चर। अब एक्वाकल्चर के लिए क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो ऑब्वियसली टू मीट द डिमांड ऑफ द फूड of the non-vegetarian people of the African countries. It is posing a threat to the indigenous catfishes in our rivers. तो अफ्रीका से उसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, हमारे जो इंडिजिनस इंडियन कैटफिश है, दे आर
threatened. अब वो एक्सटिंक्ट होने के वर्ज पे हैं. तो ये इलीगल इंट्रोडक्शन था. इलीगल मतलब जो फिशरीज के साथ रिलेटेड लोग हैं उन लोगों ने इसको इंपोर्ट करवाया इस फिश को इंडिया में, और फिर बाद में उसका रिप्रोडक्शन करवाया इलीगल, और फिर उसको वहां पे वाटर बॉडीज में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया. सो दिस इज रियली सो डेंजरस. ओके. नंबर 4, को एक्सटिंक्शन. ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. ओके. को एक्सटिंक्शन मतलब को हमें पता है जैसे को एग्जिस्ट होता है ऐसे ही को एक्सटिंक्शन होता है. को एग्जिस्टेंस का मतलब है एक साथ रहना, एक का एग्जिस्टेंस दूसरे को सपोर्ट कर रहा है. वैसे ही को एक्सटिंक्शन में क्या होता है, एक का एक्सटिंक्शन दूसरे को भी एक्सटिंक्ट करता है. क्योंकि हमने देखा अभी तक का हमारा जो डिस्कशन चला है उसमें कोई स्पीसीज ऐसा सोल सरवाइव नहीं कर रही है जहां पे उसको किसी और स्पीसीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े. इवन प्लांट्स who are photosynthesizing for their food, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है. तो देखिए आप, so when a species becomes extinct, the species associated with it also extinct. ऐसा है. आप देखिए फिग और वास्प वाला एग्जांपल म्यूचुअलिज्म में, अगर वहां पे फिग नहीं रहेगा तो उसका ऑब्लिगेटरी वास्प भी वहां पे नहीं सरवाइव कर सकता है. ओके. ऐसा ही आपने देखा बम्बल बी एंड ऑर्किड का एग्जांपल म्यूचुअल रिलेशन में. तो नॉट ओनली इन म्यूचुअल रिलेशन, इवन प्रे प्रेडेटर रिलेशन में और पैरासाइट एंड होस्ट रिलेशन में भी ऐसा पॉसिबल है. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप देखिए. एक्सटिंक्शन ऑफ द पैरासाइट्स व्हेन होस्ट इज एक्सटिंक्ट. ओके. तो अगर होस्ट नहीं रहेगा तो पैरासाइट किसके ऊपर सर्वाइव करेगा, दैट इज रियली अ क्वेश्चन. तो उसका भी लॉस हो सकता है. दूसरा, in co-evolved plant pollinator mutualism, extinction of the one causes extinction of other. जैसे अगर ये इंसेक्ट है उसका एक्सटिंक्शन हो गया तो फिर इस प्लांट का पोलिनेशन कौन करेगा, तो प्लांट इज ऑब्वियसली गोइंग टू एक्सटिंक्ट. अगर यहाँ पे ये प्लांट अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो ऑब्वियसली ये बर्ड भी एक्सटिंक्ट होने वाला है. सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने चैप्टर नंबर 13 में देखे हैं जहाँ पे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, उसको यहाँ पे आप कोरिलेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को. म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, एमेंसालिज्म, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, पैरासाइट होस्ट इंटरेक्शन. ओके. ये सारे जो इंटरेक्शंस हैं उसको आप यहाँ पे को एक्सटिंक्शन कैटेगरी में जस्टिफाई कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द एविल क्वाड्रेट which is responsible for the loss of biodiversity. In the next lecture, we will be discussing about conservation of the biodiversity. हमने जो नुकसान करना था वो आज तक हमने किया है. Now what is our duty? मतलब अब हमारे लिए स्मार्टनेस क्या है. तो वॉट एवर राइट नाउ वी आर हैविंग, जो लॉस हो चुके हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसको हम वापस नहीं ला सकते. बट वॉट एवर राइट नाउ इज एंडेंजर्ड, जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है या जो अभी फ्लरिश कर रहे हैं या जो अच्छे से वेल डेवलप्ड है, उसका कंजर्वेशन करना ही आज हमारी प्राइमरी ड्यूटी है. So in the next lecture, we will be discussing about the conservation of the biodiversity and its ways, how we can conserve biodiversity, how we can play our part for conservation of the biodiversity. So in the last lecture of this chapter, tomorrow we will be discussing about this. Till then, think about conservation of the biodiversity, think about the nature's duty, what it has played for us. Okay, now think about our duties, what we can do for nature, we can do for the conservation of the biodiversity. Okay, उसके बारे में थोड़ा सोचिए. And being science student, being student of biology, आपकी भी first priority यही रहनी चाहिए. So dear students, if you are having any doubts, any queries regarding today's session, please call me, contact me. Okay, till then, stay safe, have a nice day.